Hello viewers, once again I welcome in the course Transportation Engineering. So last class I have discussed about the design of joints in cement concrete pavement, and in design of cement concrete pavement we have seen that the different types of joint, like the joints is broadly classified into the transverse joint and longitudinal joints, and this transverse joint is further classified into the expansion joint, contraction joint, warping joints and construction joints. And then we have also discussed how to design the tie bars and dowels bars, and then we have solved the problems related to the each topic, like how to design the expansion joint, contraction joint, and then how to design the tie bars and dowels bars. So today I am going to discuss one of the very important topic, that is pavement evaluation and then strengthening of existing pavements. So let us start. What is pavement evaluation and then how to strengthen the existing pavement? So pavement, there are two types of pavement evaluation, namely structured evaluation of the pavement and evaluation of the pavement surface condition. So in structured evaluation, evaluation of the pavement, in both flexible and rigid pavement, one test is carried out, that is called plate bearing test, that is already discussed in the previous lecture. If you will see the lecture, so we have already discussed in detail that what is plate bearing test and how to perform the plate bearing test and how to compute the modulus of subgrade reaction and different aspects of the design rigid pavement. Assessment of flexible pavement overlay thickness requirement by another one of the very important method, that is called Benkelman beam method. Evaluation of pavement surface condition. So surface condition of flexible pavement evaluated by various surface condition, like flexible pavement evaluated by unevenness, ruts, patches and cracks. Surface condition of rigid pavement may be assessed by the cracks developed and by faulty joints affecting the riding quality of the pavement. This pavement unevenness in flexible pavement may be measured by using unevenness indicator, profilograph, profilometer and rough meter. The pavement unevenness can also be computed. One of the very important can be measured by the bump integrator or unevenness indicator. So this unevenness unevenness can be measured in terms of unevenness index, that is expressed in centimeter per kilometer, and that depends on the different value, and on the basis of different value how we will classify the riding quality. So in old pavement, if the unevenness index is less than 95 centimeter per kilometer, then we can say that the riding quality is excellent. Same in the old pavement, if the unevenness index lies in between 95 to 119 centimeter per kilometer, then we can say that riding quality is good and there is no need of resurfacing. Similarly, if the unevenness index lies in between 120 to 144, then riding quality is fair. But in old pavement, if unevenness index lies in between 145 to 240 centimeter per kilometer, then riding quality is poor, and there may be you can refer as the resurfacing, or we can say the riding quality is poor. If the unevenness index is greater than 240 centimeter per kilometer, then we can say that riding quality is very poor and resurfacing is required. Similarly, in new pavement, if the unevenness index is less than 120 centimeter per kilometer, then we can say that riding quality is good and it is acceptable. If the unevenness index lies in between 120 to 145, then riding quality is fair and we can also acceptable. But if the unevenness index is greater than 145 centimeter per kilometer, then riding quality is poor and it is not acceptable, and resurfacing is required. Strengthening of existing pavement, that is, we can say that another term, that is called overlay. What is overlay? So overlay is the additional thickness of pavement is provided either in one or two layer over the existing pavement is called overlay. And there are four types of overlay, namely flexible overlay over flexible pavement, flexible overlay over rigid pavement,
rigid overlay over flexible pavement and rigid overlay over rigid pavement. So let us discuss one by one what is flexible overlay over flexible pavement and these remaining three. So flexible overlay over flexible pavement, this method done by the Benkelman beam method. What is Benkelman beam? So Benkelman beam is a device which can be used to measure the rebound deflection of a pavement due to a dual wheel assembly or design wheel load. So this is the plan of Benkelman beam method. Here we can say that this point is called probe and this is called hinge point or pivot point, or this is the front leg and rear leg, and this position is called where we have to place the dial gauge. So the distance between the probe end of the probe and this pivot point or hinge point is 2.44 meter. Similarly, from the distance of hinge point to the dial gauge or pivot point, the distance is 1.22 meter. So here I have written the dimension. Benkelman beam consists of total cylinder beam of length 3.66 meter, pivoted at 2.44 meter from probe. Distance from pivot to dial gauge. Here we can say that distance from pivot to dial gauge is 1.22 meter. Similarly, distance from pivot to front leg is 25 centimeter. This is the front leg and this is the rear leg. And distance between the distance from pivot to rear leg is 1.66 meter. What we do actually when Benkelman beam is performed, so Benkelman this apparatus is placed in between the two wheel or of the rear wheel. Here we can say that this is the another elevation of this Benkelman beam. This is called the toe of the probe. Distance between the pivot point, this is the pivot point. Distance between pivot to toe of the probe is 2.44 meter. This is the position of dial gauge. This is the front leg and this is the rear leg. So distance between this pivot and this front leg is 25 centimeter. Similarly, this is 1.22 meter and the total length is 3.66 meter. This is the another picture of this Benkelman beam method. Benkelman beam. This Benkelman beam is placed in between the two wheel, rear wheel, and along the stretch we have to perform the various tests. In India, generally 10 to 15 points are taken, and each point we have to measure 3 deflection by dial gauge. One deflection is called initial dial gauge reading. Second one is called intermediate dial gauge reading, and the third one is final dial gauge reading. So for each point you will get the three dial gauge value. One is called initial dial gauge reading, intermediate dial gauge reading, and final dial gauge reading. With the help of this initial, final, and intermediate dial gauge reading, you have to compute the rebound deflection that is denoted by D. So let us start the procedure. Before that, I will write some things. The rebound deflection reading measured by dial gauge. As I told you, the deflection is measured by dial gauge. A loaded truck with rear axle load of 8170 kg is used for the deflection study. Design wheel load is a dual wheel load assembly of gross weight 4085 kg with an inflation pressure of 5.6 kg per centimeter square. Now I am going to discuss the procedure. So procedure: the truck is driven slowly parallel to the edge and stopped such that left side rear dual wheel is centrally placed over the first point for deflection measurement. जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है वहां पे आपको क्या करना है, प्रोब को प्लेस करना है और ट्रक जहां पे रहेगा ड्रिवन स्लोली पैरेलल टू द एज एंड स्टॉप्ड सच दैट लेफ्ट साइड रेयर व्हील इज सेंट्रली प्लेस्ड. सेकेंड पॉइंट जो है कि आपका जो प्रोब जो है एंड इज इंसर्टेड बिटवीन द गैप ऑफ द डुअल व्हील एंड इज प्लेस्ड एग्जैक्टली ओवर द डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन पॉइंट. इस तरह के ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपको 10 भी हो सकता है, 15 और 20 आपको लेना है, लेकिन हर ऑब्जर्वेशन पॉइंट को आपको 3 डायल गेज रीडिंग मिलेगी. When dial gauge reading is stationary or when the rate of change of pavement deflection is less than 0.025 mm per minute, the initial dial gauge reading D0 is noted. Similarly, the truck is moved forward slowly through a distance of 2.7 meter from the point and stopped. The intermediate dial gauge reading DI is noted. Similarly, the truck is driven forward through a further distance of 9 meter and the final dial gauge reading is measured. Here we can say that here this is the first point where the probe is placed and initial dial gauge reading
when truck is moved forward to 2.7 meter, the intermediate dial gauge reading is recorded. Similarly, once again the truck is moved slowly to a distance of 9 meter, final dial gauge is reading. When truck is moving, at that time the speed of the truck should not exceed 10 meter per second. Okay, the 3 deflection dial gauge reading from a set of reading at one deflection point under consideration. एक पॉइंट पे आपको 3 ये डिफ्लेक्शन मिला है, आपका इनिशियल डायल गेज रीडिंग, इंटरमीडिएट और फाइनल डिफ्लेक्शन. इसके हेल्प से हम लोग जो है रिबाउंड डिफ्लेक्शन निकालेंगे. सिमिलरली द ट्रक, जो अब नेक्स्ट पॉइंट है वहां पे ट्रक को मूव कराया और फिर से हमने जो है प्रोब को इन बिटवीन फिक्स किया और फिर से सेम प्रोसीजर को हमने रिपीट किया. मतलब दूसरे पॉइंट पे भी हमें 3 रीडिंग फिर से मिला, इनिशियल डायल गेज रीडिंग, आपका इंटरमीडिएट डायल गेज रीडिंग एंड फाइनल डायल गेज रीडिंग. इस तरह से हमको ऑब्जर्वेशन को जो हमने अलोंग दी स्ट्रेच 10 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स लिए है, उसके अलोंग हमें जो है सारा का सारा वैल्यू कंप्यूट करना है. उसके बाद क्या करना है कि आपको द टेम्परेचर ऑफ द पेवमेंट सरफेस आर रिकॉर्डेड एट द इंटरवल ऑफ 1 आवर ड्यूरिंग द स्टडी. बिकॉज जो हम लोग जो है 2 तरह का करेक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक टेम्परेचर करेक्शन और दूसरा जो है आपका मॉइस्चर सबग्रेड मॉइस्चर कंटेंट करेक्शन. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो जो लिया जाता है दैट इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड और एट द सेम टाइम यू हैव टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट इन द सबग्रेड सॉइल also to be determined at suitable interval. Once you have computed the D0, DI and DF at different points along the stretch, then we have to compute the rebound deflection value D at any point is given by one of the following 2 conditions. The first condition is if DI minus DF is less than equal to 2.5 divisions of the dial gauge or 0.025 mm, then rebound deflection can be computed either by this expression or this expression, that is D is equal to 0.02 D0 minus DF into mm, where D0 जो है आपका initial dial gauge reading है और DF जो है आपका final dial gauge reading है. अगर DI, if DI minus DF is greater than equal to 2.5 division, then in that case we have to compute the rebound deflection by this expression, where K can be computed. K जो है आपका जो रिबाउंड डिफरेंट रिबाउंड हैमर के डिफरेंट आपका जो बेंकलमैन बीम मेथड के लिए अलग अलग होगा और इस एक्सप्रेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, जहां की D जो है डिस्टेंस बिटवीन बियरिंग ऑफ द बीम एंड रेयर एडजस्टिंग लेग, E जो है आपका डिस्टेंस बिटवीन द डायल गेज एंड रेयर एडजस्टिंग लेग और F जो है आपका डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रेयर लेग्स जो है. इन इंडिया जनरली द वैल्यू ऑफ K इज टेकन एज 2.91 और D की वैल्यू जो है वो इस एक्सप्रेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, 0.02 D0 minus DF plus 0.0582 DI minus DF. So once we have performed this Benkelman beam method, then how to analyze the data? So for the analysis of data, जो आप लोग का है सबसे पहले कि हम लोग जो हमने अलग अलग पॉइंट पे रिबाउंड डिफ्लेक्शन निकाला है उसको हमने लिख दिया है. So स्टेप 1 में सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि स्टेप 1 में जो हमें निकालना है to find mean deflection in mm. मीन डिफ्लेक्शन जो है हमें निकालना है इन mm, इसको हमने डी बार से दिखाया है. लेट अस से कि हर पॉइंट पे जो हमने 3 रीडिंग लिया था D0, DI और DF और उसके हेल्प से हमने जो रिबाउंड डिफ्लेक्शन निकाला था, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे लेट अस से कि D1, D2, D3 so on and so forth DN be the rebound deflection at observation point 1, 2, 3 so on and so forth n respectively. So यहां से जो मीन आपका डिफ्लेक्शन जो है मीन डिफ्लेक्शन कैन बी कंप्यूटेड. इसका मीन जो होगा वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डी बार डिवाइडेड बाई एन, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n. यहां से हमने मीन डिफ्लेक्शन निकाल लिया. सो मीन डिफ्लेक्शन आपका क्या हो गया, मीन डिफ्लेक्शन डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to n di डिवाइडेड बाई n. ये आपका दिस इज योर मीन डिफ्लेक्शन. Once you have computed the mean deflection, step 2 में आपको जो है क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन.
standard deviation sigma. So standard deviation can be computed by square root of summation of di minus d bar I running from 1 to n divided by n minus 1. यहां से आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, उसके बाद जो स्टेप थर्ड है आपका, स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्लेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्लेक्शन DC can be computed. So characteristics deflection कैसे निकाल सकते हैं? So DC is equal to d bar plus sigma. Characteristic deflection d bar plus sigma ये according to IRC है, और या तो DC is equal to d bar plus x into sigma. इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां की x जो है आपका क्या है, x is given in the problem. So यहां से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्लेक्शन निकाल लिया। जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्लेक्शन निकाल लिया, देन वी हैव टू अप्लाई द करेक्शन। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, करेक्शन लगाना है। सो टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन एंड सबग्रेड मॉइस्चर करेक्शन। सो टेम्परेचर जो हमने नोट किया था जब हमने टेस्ट को परफॉर्म किया, उस वक्त जो टेम्परेचर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो IRC बोलते हैं कि इसको आपको 35 लेना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सो टेम्परेचर करेक्शन क्या होगा, टेम्परेचर करेक्शन, सो टेम्परेचर करेक्शन dt. So dt can be written as dt is equal to dc minus t minus 35 into 0.0065. This is the temperature correction. Once you have temperature correction is applied, then subgrade moisture correction you have to apply. So subgrade moisture correction, जिसको हमने ds से लिखा है। सो ds इज इक्वल टू 1.2 to 1.3 टाइम्स dt फॉर सैंडी सबग्रेड, एंड फॉर क्लेई सबग्रेड के लिए ds इज इक्वल टू 2 टाइम्स dt फॉर क्ले। जैसे आपने करेक्शन अप्लाई कर दिया टेम्परेचर और सबग्रेड मॉइस्चर, देन वी कैन फाइंड द थिकनेस ऑफ ओवरले। सो थिकनेस जो है स्टेप आपका ये कौन सा था, 4। तो स्टेप 5 में जो है आप क्या करना है, हमें स्टेप 5 में थिकनेस ऑफ WBM वाटर बाउंड मेकाडम और ग्रैनुलर ओवरले। तो थिकनेस इसका कैसे निकाला जाएगा, एज पर IRC। सो H0 इज इक्वल टू 550 log DCC डिवाइडेड बाई DA टू द बेस 10। यहां से आप लोग थिकनेस ऑफ WM या ग्रैनुलर ओवरले निकाल सकते हो। ये जो है एज पर IRC गाइडलाइन, IRC। अब यहां पे DCC क्या है, सो DCC इज द कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टेड डिफ्लेक्शन in mm, and DA is the allowable deflection in mm। और ये allowable deflection जो होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका डिजाइन व्हीकल पर डे, डिजाइन व्हीकल पे। सो दिस इज DA
इज द फंक्शन ऑफ ए जो आपका क्या है, डिजाइन व्हीकल पर डे, और ए कैन बी कंप्यूटेड एज P into 1 plus R to the power n plus 10. R जो है आपका क्या है, ट्रैफिक ग्रोथ रेट। सो ये आपका जो जब है व्हीकल डिपेंड्स करेगा आपका, तो जो अलाउएबल डिफ्लेक्शन जो है, अलाउएबल डिफ्लेक्शन और वैल्यू ऑफ ए जो होगा वो व्हीकल पर डे। When vehicle per day is 150 to 450, then allowable deflection is 1.5 mm. जब आपका ये 450 से 1500 हो जाए, then it is 1.25 mm, and then 1500 to 4500 हो जाए, then इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 mm. सो ये आपका जो है अलाउएबल डिफ्लेक्शन यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे आपने अलाउएबल डिफ्लेक्शन निकाल लिया, डीसीसी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टेड डिफ्लेक्शन जो है, जो कि आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्लेक्शन था उसको, उसके बाद आपने टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई किया और सॉइल सबग्रेड मॉइस्चर अप्लाई किया, जो कि हमने डीएस लिखा है, वही चीज है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टेड डिफ्लेक्शन। यू कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू को आप लोग निकाल सकते हो। डीए जो है तो यहां से आपको एच नॉट इज इक्वल टू 550 log टू द बेस 10 डीसीसी बाई डीए। यहां से आप लोग ओवरले थिकनेस ऑफ डब्ल्यूबीएम निकाल सकते हो। सो अगर जो है हमारा कि एच नॉट की वैल्यू जो है वो एज पर द आईआरसी जो दैट इज 550 log डीसीसी बाई डीए, जो डीए है वो हमारा अलाउएबल डिफ्लेक्शन इन एमएम है, और उसको कैसे, वो फंक्शन है हमारा किसका, डिजाइन ट्रैफिक ए के, और डिजाइन ट्रैफिक कैन बी कंप्यूटेड बाय दिस एक्सप्रेशन वेयर आर जो है वो हमारा एनुअल रेट ऑफ ट्रैफिक, पी जो है हमारा प्रेजेंट ट्रैफिक इन कमर्शियल व्हीकल पर डे जो है वो आपका पी है। तो उसके हेल्प से हम लोग ए निकाल लेंगे, और ए जैसे जो आएगा जिस रेंज में आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अलाउएबल डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे। ये ओवरले थिकनेस जो है एक दूसरे इक्वेशन से भी निकाला जाता है, जिसको बोला जाता है रुइज इक्वेशन। रुइज इक्वेशन से भी हम लोग ओवरले थिकनेस को निकाल सकते हैं। उससे पहले कि जो एच नॉट हमने निकाला है, अगर हमने पूरा का पूरा हमने ओवरले जो बिटवीन का दिया है, देन वी हैव टू प्रोवाइड ओनली 0.5 एच नॉट। जो भी एच नॉट आया है उसका हाफ हमें ले लेना है। व्हेन बिटुमिनस मैकाडेम इज प्रोवाइडेड एज ओवरले, द थिकनेस ऑफ बिटुमिनस ओवरले इन एमएम विल बी एच नॉट बाई 2. This overlay thickness can also be computed by another equation that is called Ruiz equation. What is Ruiz equation? So according to Ruiz equation, H naught is equal to R by 0.434 log to the base 10 dCc by dA, where H naught is the thickness of bituminous overlay in centimeter पे है। यहाँ पे आपका जो thickness है वो सेंटीमीटर में है। R जो है वो डिफ्लेक्शन रिडक्शन फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द ओवरले मटेरियल। ये R जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिफ्लेक्शन रिडक्शन फैक्टर है जो डिपेंड करेगा ओवरले मटेरियल। यूजुअल वैल्यू जो होता है इसकी 10 से 15 और एवरेज वैल्यू जो है वो 12 ले सकते हैं हम लोग। डीए जो है वो अलाउएबल डिफ्लेक्शन विच डिपेंड्स ऑन द पेवमेंट टाइप एंड डिजायर डिजाइन लाइफ, उस पे हमारा डिपेंड करेगा अलाउएबल डिफ्लेक्शन। और जो इसकी वैल्यू जो होगी वो जनरली 0.75 टू 1.25 mm। सेकेंड ओवरले जो है, जो सेकेंड टाइप जो है वो रिजिड ओवरले ओवर रिजिड पेवमेंट। सो रिजिड ओवरले थिकनेस जो है, जो रिजिड पेवमेंट पे होगा उस थिकनेस को कैन बी कंप्यूटेड बाय दिस एक्सप्रेशन एच नॉट इज इक्वल टू एच डी टू द पावर ए माइनस एक्स इंटू एच ई टू द पावर बी, और इंटायर पावर इज एन, वेयर एच डी जो है आपका क्या है, डिजाइन थिकनेस है। एच ई जो है कि अब जो एग्जिस्ट कर रहा है पेवमेंट थिकनेस वो है, और ए बी एक्स एन डिपेंड्स ऑन द पेवमेंट एंड मेथड ऑफ ओवरले कंस्ट्रक्शन। डिफरेंट जो एजेंसी है वो अलग अलग वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करती है, एन की और फिर ए और बी की, ठीक है। तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। सो द वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी कंप्यूटेड एज क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर्स एंड पीसीए एग्जिस्टिंग, दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टिंग पेवमेंट कंडीशन। अगर गुड कंडीशन में है तो एक्स की वैल्यू 1, अगर इनिशियल क्रैकिंग स्टार्ट हुआ है जस्ट क्रैकिंग तो आपका 0.75 एक्स की वैल्यू, और बैडली क्रैक्ड है तो 0.35। Similarly, the value of A, B and N can also be computed as
फॉर डिफरेंट एजेंसी ने ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन मेथड ए, बी और एन की वैल्यू दी है. क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर्स directly poured directly on the old pavement. The value of A is 0.1.4, B is 1.4 and N is 1 by 1.4. For leveling course के लिए जो कंस्ट्रक्शन मेथड लेवलिंग कोर्स है तो देन 2.2, 2 and 1/3. Similarly PCA एजेंसी के लिए जो प्रोवाइडेड डायरेक्टली ऑन ओल्ड पेमेंट 1.87, 2, 1/2 एंड लेवलिंग कोर्स के लिए 2 to 1/2. Similarly the third जो आपका टाइप्स ऑफ ओवरले है फ्लेक्सिबल ओवरले ओवर रिजिड पेमेंट. So the thickness of flexible overlay over rigid pavement can be computed by this expression 2.5 f into hd minus he, where hf जो आपका क्या है flexible overlay thickness, आपका f जो है वो factor which depends on the modulus of existing pavement, hd जो है वो क्या है डिजाइन थिकनेस ऑफ रिजिड पेवमेंट और he जो है आपका एग्जिस्टिंग रिजिड पेवमेंट थिकनेस है जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग रिजिड पेवमेंट थिकनेस. The thickness of bituminous overlay HB can be computed by this expression. आप thickness जो bituminous के टर्म में भी आप overlay के टर्म में निकाल सकते हो इस एक्सप्रेशन से. And the last one is rigid overlay over flexible pavement. So इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमने प्लेट बेयरिंग टेस्ट को कंडक्ट करना है और वहां से आपको मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकाल सकते हैं और उस मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन और डिजाइन व्हील लोड के अकॉर्डिंगली हमें डिजाइन करना है. ठीक है. सो ये हमने प्लेट बेयरिंग टेस्ट में डिस्कस किया है कि कैसे के की वैल्यू को निकालते हैं. अब कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो है आज के सेशन का हमने लिया है कि बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन स्टडीज वेयर कैरीड आउट ऑन 15 selected points on a stretch of a flexible pavement during summer season using a dual wheel load of 4085 kg and pressure 5.6 kg per centimeter square. The deflection value obtained in mm after making the necessary leg correction are given below. If the present traffic consists of 750 commercial vehicle per day, determine the thickness of bitumen overlay required if the pavement temperature during the test was 30 degree centigrade and the correction factor for subsequent increase in subgrade moisture content is 1.13. Assume annual rate of growth of traffic is 7.5%. Adopt IRC guidelines. और ये जो आपका जो वैल्यू है जो मैंने बताया था कि हर पॉइंट पे जो तीन आपका जो आपका डायल गेज रीडिंग था उस 3 रीडिंग से हमने जो एक आपका डिफ्लेक्शन निकाला है, रिबाउंड डिफ्लेक्शन, वो वैल्यू है डिफरेंट 15 पॉइंट्स पे. ठीक है, 15 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है. तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग मीन डिफ्लेक्शन निकाल लें. मीन डिफ्लेक्शन स्टेप 1 हमारा क्या था कि मीन डिफ्लेक्शन हम लोग पहले निकाल लें. मीन डिफ्लेक्शन डी बार इन एमएम. सो डी बार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1.40 प्लस 1.32 प्लस 1.25 प्लस 1.35 प्लस 1.48 प्लस 1.60 प्लस 1.65 प्लस 1.55 प्लस 1.45 प्लस 1.40 प्लस 1.36 प्लस 1.46 प्लस 1.50 प्लस 1.52 प्लस 1.45 डिवाइडेड बाई 15. तो यहां से आपका जो मेन डिफ्लेक्शन आ जाएगा वो 1.45 mm. सिमिलरली आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम लोग निकाल सकते हैं. तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए. स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्सप्रेशन जो है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1. तो वहां से हम लोग जो है आपका स्टेप 2 इज स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा. So sigma can be computed as square root of di minus d bar का whole square divided by n minus 1. So यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.107 mm आप निकालोगे तो d बार आपने निकाल लिया है तो 1.4 minus 1.45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 प्लस समेशन ऑफ ये ऑफ कोर्स यहाँ पे i रनिंग फ्रॉम 1 to n. ओके, सो समेशन ऑफ डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1. सो यहां से हमने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया. स्टेप 3 क्या था हमारा? कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्लेक्शन निकाल लें. कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्लेक्शन डीसी. तो एज पर आईआरसी जो है डीसी इज इक्वल टू डी बार प्लस सिग्मा. सो ये वैल्यू हो गई 1.45 प्लस 0.107. तो ये वैल्यू कितनी हो गई
1.45 प्लस 0.107, तो ये वैल्यू हो गई 1.557 mm। फिर हमने क्या कर दिया, करेक्शन अप्लाई कर दिया। स्टेप 4, टेम्परेचर करेक्शन एंड soil subgrade moisture correction. So temperature correction dt is equal to dc minus t minus 35 into 0.0065. So corrected deflection जो है वो आपका characteristic deflection 1.557 minus आपका जो टेम्परेचर जो है वो कितना है, टेम्परेचर इज मेजर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सो 30 माइनस 35 इंटू 0.0065, तो ये वैल्यू आ गई 1.557 प्लस 5 इंटू 0.0065, ये वैल्यू आ गई 1.5895 mm dt। और यहां पे सब ग्रेड मॉइस्चर करेक्शन का भी वैल्यू दे दिया है कि आपको जो लेना है वो कितना, जो सब ग्रेड मॉइस्चर कंटेंट इज 1.3, सो यहां से आपका जो ds हो जाएगा आफ्टर सब ग्रेड मॉइस्चर अप्लाइड, ds इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स dt, सो ये वैल्यू हो गया इंटू 1.3, 2.066 mm is the ds। सिमिलरली जो वैल्यू जो है आपका ds हमने निकाल लिया है, तो ds के बाद जो है आपका सबसे पहले h नॉट हम लोग लिख दें, क्या एक्सप्रेशन है, तो 550 log to the base 10 dcc by da। अब अलाउएबल डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो अलाउएबल डिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लीजिए, डिजाइन आपका ट्रैफिक जो हो जाएगा, डिजाइन ट्रैफिक P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n प्लस 10। तो यहां से आपकी P की वैल्यू कितनी है, P जो है वो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो P जो है आपका 750 कमर्शियल व्हीकल पर डे, सो 750 इंटू 1 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 100, और n की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 ले लिया है, तो 2 प्लस 10, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 750 इंटू 1 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर 12, तो यहां से आ गई 1786 कमर्शियल व्हीकल पर डे, 1786 व्हीकल पर डे। सो ये किस केस में आ गया, जब आपका व्हीकल जो है वो 1500 से 4500 के बीच में है, 1500 टू 4500। तो यहाँ पे जब हमने बताया था कि जो DA की वैल्यू जो है और A, जब DA जो होगा 1.5 mm होगा, कब, जब 150 टू 450 व्हीकल पर डे। फिर आपका 1.25 कब होगा, जब 450 टू 1500, और 1 होगा जब आपका 1500 टू 4500 होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका जो DA की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1 mm। सो H नॉट कैन बी कंप्यूटेड एज H नॉट इज इक्वल टू 550 log to the base 10 dcc by da। तो ये हो गया 550 log to the base 10 dcc, कितना हमने निकाला है, dcc की वैल्यू जो आई है दैट इज इक्वल टू, जो आफ्टर अप्लाइंग करेक्शन 2.066, सो 2.066 डिवाइडेड बाई 1, तो इसकी वैल्यू जो आ गई 550 इंटू लॉग टू द बेस 10 2.066 173.32 mm 173.32 mm इज द जो है आपका ओवरले थिकनेस ऑफ द ओवरले।
सो थिकनेस ऑफ ग्रैनुलर ओवरले जो है वो 173.32 है। आईआरसी सजेस्ट करता है कि आपको जो बिटुमिनस कंक्रीट ओवरले का जो थिकनेस लेना है वो 0.5 टाइम्स H0। सो इसको हमने हाफ कर दिया, तो वही हमारा क्या हो गया, थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट ओवरले, दैट इज 86.66 mm। लेट अस टेक द अनदर प्रॉब्लम। ऑन ए नेशनल हाईवे पेवमेंट, मीन वैल्यू ऑफ बेंगलमैन बीम मेथड, जो मीन वैल्यू है उसकी दी हुई है, डायरेक्टली यहां इस क्वेश्चन में दे दिया गया है। जो मीन वैल्यू इज 1.45 mm and standard deviation is also given, that is 0.107 mm। पेवमेंट का टेम्परेचर जो है वो मेजर किया गया, दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर जो है वो भी दे दिया गया है 1.6। कंप्यूट द कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्लेक्शन एंड कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ 2 सिग्मा। यहाँ पे आपको जो वैल्यू जो x का है वो 2 सिग्मा है। तो सबसे पहले तो आपका क्या है, d बार हमने यहां से कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्लेक्शन dc इज इक्वल टू d बार प्लस 2 सिग्मा, बिकॉज क्वेश्चन में ही बोला है कि 2 सिग्मा हमें लेना है। सो क्या हो जाएगा, dc इज इक्वल टू 1.45 प्लस 2 इंटू 0.107। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1.45 प्लस 2 इंटू 0.107। सो दिस वैल्यू इज 1.664। ये वैल्यू जो आपकी आ गई dc इज 1.664 mm। उसके बाद हमने क्या किया, करेक्शन अप्लाई किया, करेक्शन। सो टेम्परेचर करेक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dc माइनस t माइनस 35 इंटू 0.0065। सो यहां से dc जो है वो 1.664 माइनस 37 माइनस 35 इंटू 0.0065। यहां से कितनी वैल्यू आ गई, 1.664 माइनस 2 इंटू 0.0065। तो ये वैल्यू जो आ गई 1.651 mm। उसके बाद हमने क्या कर दिया, मॉइस्चर सबग्रेड मॉइस्चर करेक्शन ds। तो ds के लिए यहां पे दे दिया है कि आपको कितना लेना है, मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर 1.6। सो 1.6 इंटू 1.651। सो दिस वैल्यू इज इंटू 1.6। तो ये वैल्यू जो आ गई वो 2.64 mm आफ्टर अप्लाइंग दी सबग्रेड मॉइस्चर करेक्शन। सो द थिकनेस कैसे निकाल लेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे आपका डी अलाउएबल डिफ्लेक्शन भी दे दिया है 1 mm। सो H0 कैन बी कंप्यूटेड एज 550 log टू द बेस 10 dcc by da। सो यहां से हो गया 550 log टू द बेस 10 dcc की वैल्यू 2.642। सो 2.642 डिवाइडेड बाई 1। सो ये वैल्यू हो गई 550 इंटू log टू द बेस 10 2.642, 232.06 mm is the thickness of granular overlay। तो अगर बिटुमिनस प्रोवाइड करना है तो यहां से फिर 0.5 H0 जो होगा वो आपका बिटुमिनस ओवरले का थिकनेस हो जाएगा, यहां से आप लोग निकाल सकते हैं।